good. Visible at both ends. Okay, so let's start with Spring Boot today. Now pay attention. Okay, so I want everybody to give their full concentration. So Spring Boot is a framework which is used to make large enterprise applications. So in the corporates, the Java which we use are Spring Boot applications. So Spring Boot forms a backend or for application. So we'll have a front end, that is a view part. Okay, as in the MVC we had, right? So this view, we have a library in Spring Boot called ThymeLeaf, with which we can design the view also. Okay, and then majority of the task of Spring Boot is in the backend part. Okay, and then we have a database also. So I'll be using MySQL database. You can use anything, any database which the company uses. That is plug and play. Just change the driver and you can switch to any database. So I'll be using MySQL database. Okay, so we have the view, we have Spring Boot, and we'll have three components we'll be having. Okay, in Spring MVC I told you all in the view will interact with which component? Controller, right? So for the view, the entire backend single point of contact will be the controller. So controller will take the request from the front end, and for further processing, the controller will pass that to the business logic part, and that is my service layer. Which layer? And the service layer, if it needs any data from the database, here we have database tables. So if the service layer needs any data from the database, it will take that database from the repository layer. So database interaction job is with the repository or DAO layer. This is which layer? Or DAO. So now we'll be having these three layers. And the data which will transfer between, okay, so this is a request. So if I am saving a data, I will collect the data. So if I want to save a student's record, so I'll take his employee number, I'll take his employee name, I'll take his percentage. Then I'll click on the save button. So I'll make a save button. As the user clicks on save, this information which I have gathered, 101, name and percentage, it will be sent to the controller, but it will be converted into an object and sent, a JSON object. So roll number 101, S name, Alice.
nice. Percentage 78.5. So it will be converted into an object. Object which is being traded. Okay. So I'll make a typical notation for an object. So let's take a hexagon. So whenever I use a hexagon means it's an object. So what is the front end sending to the controller? A object. So if I have an object, I should have a class also. So that class we will call as the entity class or model class. So we have these also. The fourth component. Okay, so you can call them as your which package? Entity package. Entity or model, whatever name suits you, you can use. Okay, and this class what will have all these attributes. So I'll have a class. What, any idea about the data members of the class? The keys of these objects. What are the keys of this object? Key value, key value, right? So key is RNO, so integer RNO, then string name or S name? S name, because this object has to be mapped, and then double percentage of PER. Yeah, like this. You have to make a class. So the object which will come from the front end will be the object of the entity or model. Okay. Now this object has been received. So when I click on save, I'll have a form. So I'll give some action to the form. I'll give some action. So action will be the endpoint. So it will say action equals to, let's say, dash save student. Save what? So this action, there should be some mapping for the controller, like a web NF. Web INF we had, right? URL pattern. What would that do? Take the action and map it to a URL pattern. So here we will have a request mapping. Initially you can think of request mapping, and then whatever mapping we have given same to same you have to give over here. So what will I write over here? Request mapping. Okay, first we have to make a class first. Okay, first make a. So these are my packages. Whatever I marked in black in small, these are my packages. Controller package, service package, repository package, and entities. Packages I should have, and then there is one small package for the main method. Which method? So main method will have one small package. So your PSVM, right? So it's a very, we don't touch this package a lot. Maybe later on in the configuration we'll touch it. So there will be one package which will have the main method. So I'll call as the app package. Which package? Application package. And then you can make other packages also if you need. So going forward we'll have some utility packages, some configuration packages, some security packages. As and when the program will scale, we will have some configurations. I'll make a config package. We'll implement security, so I'll make a security package. We'll need some utility classes, some exception handling classes, something like that. So I'll call it as the util package. Blah blah blah, like this you can make. But so these are my packages. So in the controller, first thing first, I'll make a class. So follow this simple rule for beginners. For each entity, have one controller, have one service, have one repository. So how many entity class do I have right now? Only one. What is the name? So for beginners, this is the best type. So what is the controller class? Then what is service class name?
में सर्विस क्लास ने स्टूडेंट सर्विस, which will be a class. Okay, and then we'll have a interface as a repository. That will be a interface, and we have an inbuilt interface called as JPA repository. So we'll extend that over here. So we get all the features of Hibernate and some more advanced features. So which interface is that? JPA, Java Persistent API. JPA stands for Persistent API Repository. So this JP, this is a wrapper over Hibernate. You know, we had JDBC, then we had Hibernate, then I told you we'll have advanced version of Hibernate. Yes. So for which entity have you made this student repository? This student repository we have made for which entity class? When you make this JPA repository, it will ask you over here. At the end over here, it will ask you like this. Okay, so I don't have any space, so I'm putting this angular bracket down. It will ask you over here. For which entity are you making this? And second thing it will ask is what is the primary key of that entity? Primary key will be what? Roll number. What is the type of roll number? What is the wrapper class for that? This you have to make the repository. And annotate each of them with the proper annotation. This will become add. We have two annotations, controller and rest controller. I'll show you the difference between both. So you can use @ controller also, and you can add @ rest controller also. Anyone, depending on the scenario. So not the classes with the proper annotations. Student class becomes @ controller, rest controller. Service class becomes @ and all annotations are capital. And all annotations are your Pascal case. It starts with the capital. Repository with repository. And student class with @ and PSVM will be some application. Okay, this class will be made by default. Okay, this you will get built in. Means this, as you make a Spring Boot application, you will get this class ready made. Okay, now which database I am using? So if you remember, we had the hibernate.cfg.xml configuration file. What would that contain? driver, username, password. For that, in Spring Boot, we have a very useful file called as application.properties. Which file? That is a properties file. So all that configuration we have to mention where? In the properties file. Okay. So here you have to give on which port your application is running. So server.port. So if I say 8085, so my port will run on which port? My application is running on which port? 8085. Then here I have to give the driver, database driver. Okay, database username, database password, all that stuff we have to mention over here. And then many other configurations also. Properties file, it's a dot properties file. Normal text file. Extension dot property. इसका भी एक alternate है. नहीं वैसा नहीं. उसका एक YAML करके भी फिर एक एक्सटेंशन आता है. ये जो प्रॉपर्टीज फाइल है ये फ्लैट फाइल है. जो
एप्लीकेशन YAML फाइल है, ये ट्री स्ट्रक्चर्ड है, यानी ये किसे सर्वर डॉट कोड एक ही लाइन में लिखा है। वापस अगर मुझे जैसे इधर देखो डेटाबेस डॉट, जैसे इधर जो है डेटाबेस डॉट यूजर नेम है ना, तो ये सब एक ही लाइन पे लिखना पड़ रहा है, डेटाबेस डॉट यूजर नेम इक्वल्स टू रूट, है ना, डेटाबेस डॉट यूजर नेम इक्वल्स टू रूट एंड डेटाबेस डॉट पासवर्ड इक्वल्स टू ब्लैंक। हमने कैसे लिखा, अलग अलग लाइन पे लिखा जाए, रूट 1 2 3 किसका डेटा। YAML फाइल क्या करता है, इसको कर देता है हायरार्किकल स्ट्रक्चर पे। कैसे करेगा, डेटाबेस एक ही बार लिखना है, फिर पाइथन की तरह टैब दो, टैब टैब देके फिर यूजर नेम और फिर कोलन क्या है, रूट। डेटाबेस अपन एक बार लिख दिया ना, अब फिर आके क्या लिखो, पासवर्ड को रूट 1 तो कुछ इस तरह का एक कीवर्ड एक ही बार आएगा बस बार बार। तो अगर सर्वर डॉट पोर्ट है, सर्वर के और भी एट्रीब्यूट्स है, तो सर्वर एक बार उसके नीचे पोर्ट ऐसा, समझ में आ रहा है। ये कौन सा हो गया, एप्लीकेशन डॉट YAML. So they ran out of naming the technologies. So YAML stands for yet another markup language. क्या ये? So इसको YAML भी बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। So ऐसा एक बेसिक स्ट्रक्चर बनेगा हमारे एप्लीकेशन का। तो ये जो ऑब्जेक्ट जो ट्रेड होगा वो कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, जो UI से आएगा, फिर कंट्रोलर उसको रिसीव करेगा, प्रोसेसिंग के लिए क्या भेजेगा उसको, सर्विस, सर्विस उसको जो भी लॉजिक लगाएगा सेव करने के लिए क्या भेजेगा, और रेपोजिटरी इसको डेटाबेस में सेव कर देगा। तो ये हाइबरनेट, क्या हो जाएगा ये हाइबरनेट। मुझे कोई चीज़ चाहिए तो ये मैं सेकंड राउंड चलाऊंगा कि भाई पहले कहाँ से लो, फिर वो किस में किसको दे देगा, वो किसको दे देगा, और कंट्रोलर फिर रिस्पॉन्ड दे देगा किसको। तो अभी आप टेस्टिंग कर, अगर आपको व्यू पे दिखाना है, कोई फ्रंट एंड पे दिखाना है, तो आप यूज़ करो रेस्ट कंट्रोलर। क्या दिखाओ, आप यूज़ करो कंट्रोलर, सॉरी क्या यूज़ करो, कंट्रोलर यूज़ करो। अगर आपको जो रिस्पॉन्स देना है वो कहाँ भेजना है, कोई UI पे भेजना है, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, और यहाँ पर जो भी हम रिटर्न करेंगे वो उस व्यू का नाम होगा, क्या होगा। तो अगर यहाँ मैं रिटर्न करता हूँ हेलो, तो एक मैंने फंक्शन बनाया, ठीक है, उसको मैंने अब इसने क्या हिट किया था, एक्शन सेव स्टूडेंट, तो एक मैपिंग बनाएंगे, क्या बनाएंगे, रिक्वेस्ट मैपिंग, उस नाम से जो एक्शन का नाम है सेम टू सेम, तो क्या आएगा, स्लैश बोलो सेव स्टूडेंट, सेम इधर केस सेंसिटिव और सब बराबर फॉलो करना। अब उसको हम मैप कर देंगे एक मेथड से, उसको मैप कर देंगे किससे, एक मेथड से मैप कर देंगे जो जो कि स्ट्रिंग टाइप रन करेगा, क्योंकि हमको व्यू रन करना है ना, स्ट्रिंग, ओके, पब्लिक स्ट्रिंग, पब्लिक स्ट्रिंग जो भी नाम देना है। नॉर्मली व्हाट आई डू इज आई टेक द एंड पॉइंट ओनली एज अ मेथड नेम। अब यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट आया है फ्रंट एंड से, यस और नो, फ्रंट एंड से, सो एट दैट डिस्कस स्प्रिंग MVC। अगर फ्रंट एंड से कोई आ रहा है तो किस में लेंगे उसको, एट द रेट मॉडल एट्रीब्यूट से, है ना। बैकेंड से भेजना है तो किस कैसे भेजेंगे, है ना, भेजना है तो कैसे, मॉडल है, मॉडल मैप है, और तो ये सब चीज़ें अभी इस्तेमाल में आएगी। So if I am sending it to a view, okay, I'll return the view name. So I'll receive this object in where, at the rate, मुझे एक फुल फिल्ड ऑब्जेक्ट आया है ना फ्रंट एंड से, तो किसमें आएगा,
मॉडल एट्रीब्यूट, इसमें एट्रीब्यूट में आए, उसको हम कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट में ले लेंगे, स्टूडेंट का स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। और फिर यहाँ जो भी करना है उसको करो। लास्ट में आपको एक व्यू का रिटर्न करना है। लास्ट में क्या रिटर्न करना है आपको, किसी, तो ये व्यू हेलो हेलो क्या है, एक व्यू का नाम है, एक HTML फाइल का नाम है, वो आपको मिलेगी रिसोर्सेज के टेम्पलेट्स फोल्डर में। कहाँ मिलेगी व्यू सारे, तो सारे व्यूज कहाँ मिलेंगे आपको, रिसोर्सेज के कौन से फोल्डर में, वहाँ जाके अपना व्यू बनाओ, क्या नाम से, hello.html। अपने को ये कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, टाइमली को बोलना पड़ता है कि सारे व्यूज़ किधर है, तो उसकी भी सेटिंग कहाँ मिलती है। ओके, सारे व्यूज़ कहाँ मिलेंगे आपको, कहाँ मिलेंगे भाई, कौन से फोल्डर में, ये तो इसे बताना पड़ता है अपने, स्लैश टेम्पलेट्स फोल्डर, और उसका एक्सटेंशन क्या होगा व्यू का, वो सब चीज़ें कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है। I'll show you all that. Okay, so this you will use @controller when you want to display answer on a web page. But तो ये हो गया फुल स्टैक। ये क्या हो गया, फ्रंट भी आप संभाल रहे हो और बैक एंड भी आप ही संभाल रहे हो। ये क्या हो गया, फुल स्टैक। अगर आप सिर्फ जावा स्प्रिंग बूट डेवलपर है, क्या है, तो आप फ्रंट एंड संभालोगे, तो ये आपका कंसर्न नहीं है, ये पूरा का पूरा आपका कंसर्न नहीं होगा फिर। So you will just return the data in a JSON format, and front-end team will take that and they will parse it using any library, React, JS or Angular, whatever. Our task will only to is send the data. तो जब हम इसको जब करेंगे तो वो टाइम हम लोग यूज़ करेंगे रेस्ट कंट्रोलर। क्या यूज़ करेंगे, रेस्ट कंट्रोलर से क्या हो जाता है, फिर हम व्यू रिटर्न नहीं करते, डेटा रिटर्न करते हैं। I'll start with this first. When I say REST controller, what will I return? I will return the actual data, not the view. फ्रंट एंड टीम वो डेटा को लेगी और वो लोग फिर दिखाएंगे फ्रंट एंड पे, हमारा काम नहीं होगा। तो हमारा काम खत्म हो जाता है डेटा भेजने पर। सी आई शो यू एग्जांपल जो मैं कल एक काम कर रहा हूँ। हाँ हाँ, इमेज सेव कर लूँगा। देखो ये दिख रहा है तुम लोगों को, तो ये रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। अब अगर समझो IPv, अब देखो ये मैंने कल एक एप्लीकेशन बनाया था, दिख रहा है क्या सॉर्टिंग पेजिनेशन, तो दिख रहा है क्या सॉर्टिंग पेजिनेशन, एस का है, किसको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। ये मैंने कल एक बनाया था एप्लीकेशन, तुमको इसका दिखाता हूँ डेमो। तो इसको रन करता हूँ मैं। ये कौन से पोर्ट पे जा रहा है, 8087 पे जा रहा है, ठीक है। जब वो चालू हो जाएगा तो लास्ट में लिख के आता है कितने सेकंड्स लगे चालू होने में, तब तक वेट करना हो, जब तक ड्राइवर कौन से पोर्ट पे चालू हुआ, ठीक है, जब तक वो मैसेज नहीं आ जाए फाइनल मैसेज, तब तक वेट करना, कुछ मत करना, ठीक है। देखो कौन से पोर्ट पे चालू हुआ और कितने सेकंड लगे चालू होने में, ये आ गया। फिर आप जाके पोस्टमैन एक टूल है एक टेस्टिंग करने के लिए। तो अब मुझे एक कस्टमर ऐड करना है, ठीक है, तो उसका मैं ये
पोस्ट मैपिंग है, ठीक है। और देखो ये मैंने चीज़ें पास कर दी उसको, अपने से ऐड करता हूँ, ठीक है, अपने कस्टमर ऐड करता हूँ कल पे। कल पे @itp.com, ये उसका मोबाइल नंबर हो गया। ओके, और ये उसका मुझे जेंडर भी डालना पड़ेगा। जेंडर के लिए से हमारा एक एट्रीब्यूट है कस्टमर जेंडर, ठीक है। तो ये जेसन फॉर्मेट को आपको बनाना पड़ता है। कॉमा दे दो, इसकी फॉन्ट बढ़ता कि नहीं पता नहीं मुझे, क्योंकि ये पोस्टमैन है ना, पोस्टमैन ऐसे ही देता है। सो ये देखो अभी ये हो गया। अब मुझे इसको भेजना है, यस 8087 पे डाल दिया इसको, और सेंड किया मैंने, देखो आ गया। ये देखो सिर्फ क्या रिस्पॉन्स आ रहा है लास्ट में, हमको रिकॉर्ड ऐड हो गया। तो रिस्पॉन्स क्या आया, व्यू, am I using any UI over here? No, so this is backend testing. So backend developers क्या यूज करते हैं, पोस्टमैन। ये API बराबर काम कर रहा है क्या, मैंने इनपुट दिया, मुझे प्रॉपर आउटपुट आया क्या बराबर। अब मुझे चेक करना है सारे कस्टमर्स को, तो कर रहा हूँ गेट ऑल कस्टमर्स, और मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ गेट ऑल कस्टमर्स। इट शुड रिटर्न मी द लिस्ट ऑफ ऑल द कस्टमर्स। इज इट रिटर्निंग मी? इफ यू वांट टू सी इन अ टेबल फॉर्मेट, गो टू प्रीव्यू, इट विल शो यू इन टेबल फॉर्मेट। देखो कल्पेश भी आ रहा है। तो ये विजुअलाइज अलग होगा फ्रंट एंड वाला। सो अगर आपको ऐसे रिस्पॉन्स देखना है पोस्टमैन के पर ही, तो क्या यूज करो, क्या यूज करो, और अगर आपको UI पे रिस्पॉन्स देखना है, इस पे देखना है रिस्पॉन्स, UI के ऊपर रिस्पॉन्स देखना है, तो क्या यूज करो, कंट्रोलर। तो विल स्टार्ट विद फर्स्ट रेस्ट कंट्रोलर। एक बार रेस्ट कंट्रोलर पूरा बना देंगे एप्लीकेशन, फिर हम किस पे जाएंगे। तो रेस्ट कंट्रोलर यूज किया आपने, फिर आप जो रिटर्न करोगे वो वही दिखाएगा। सो इफ आई यूज रेस्ट कंट्रोलर एंड आई से रिटर्न हेलो, क्या दिखाएगा वो, हेलो दिखा देगा। इट विल नॉट गो एंड लुक फॉर अ व्यू नेम बाय द नेम हेलो। व्हेन विल इट लुक फॉर द व्यू नेम, व्हेन आई यूज कंट्रोलर, when I use controller and I return a string, it searches by the view name for that string, मिला उसको view name तो वो दिखाएगा। When I use REST controller and I return a string, it will give me the string, literally the string itself. ऑब्जेक्ट भी सकते हैं, जो भेजना है भेज सकते हैं आप, तो उसी को अभी स्टडी करेंगे, ठीक है। समझ में आया पूरा फ्लो ये। लेट मी सेव दिस फॉर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग। सो तुम लोगों के इसको मैं क्या करता हूँ, अभी डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ फिलहाल, ओके। फिर मैं जब अपना बनाएंगे प्रोजेक्ट तो उसमें डाल देंगे स्प्रिंग बूट आर्किटेक्चर। ओके, सो यू शुड नो वेयर विच लेयर स्टैंड्स। सो कंट्रोल Z करके ये भी निकाल लेंगे वापस, लगा देंगे वापस। क्या व्यू वापस क्यों नहीं आ रहा है, आ गया, सेव कर। So now to make a basic structure of a Spring Boot application, open a file and एक वेबसाइट है Spring Initializer। क्या है, पहले मैं करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। Spring Initializer दिख रहा है, आ गया, उस पर क्लिक करो और यहाँ पर जाओ Spring Initializer पे। ओके, मैवन अपना बिल्ड सिस्टम रहेगा, क्या रहेगा, बोले मैवन किया, हाइबरनेट भी किया था, सिस्टम रखो। लैंग्वेज का रखना है आपको, जावा 3.4.2 रख लो, ठीक है। वर्जन 3 के बाद बहुत से चेंजेस आए हैं स्प्रिंग बूट में, और वर्जन 3 के पहले बहुत से चेंजेस थे, अभी 3 के बाद और चेंजेस आए हैं। ग्रुप इज योर बेस पैकेज, जो कंपनी का नाम। सो मैंने क्या बनाया, com.it
आर्टिफैक्ट इज आपके प्रोजेक्ट का नाम जो आपको यहाँ दिखाना है, जो प्रोजेक्ट का नाम यहाँ दिखाना है आपको इधर, ठीक है, जो आपको यहाँ दिखाना है प्रोजेक्ट का नाम एक्लिप्स में, वो आपका आर्टिफैक्ट बन जाता है। तो क्या नाम देना है आपको, पैटर्न फॉलो करें तुम लोग के लिए, तुम लोग के लिए क्या फॉलो करें हम लोग, ITP ना, ITP फर्स्ट स्प्रिंग बूट, ओके, तो ITP फर्स्ट स्प्रिंग बूट कर देते हैं, ITP फर्स्ट स्प्रिंग बूट, ठीक है। व्हाट क्या करेगा फिर, आपका ग्रुप और आपका आर्टिफैक्ट को मर्ज करके कॉन्टैक्ट करके क्या बनेगा आपका बेस पैकेज का नाम, और इस पैकेज में आपकी ऐप क्लास होगी। तो आपको जो भी बनाना है आपको इस पैकेज के आगे ही बनाना है एक्सटेंशन। तो डॉट कंट्रोलर किसके आगे लगेगा, इसके आगे, डोंट मेक एनी अदर पैकेज कंट्रोलर, और एंटिटी कहाँ लगेगी, इसी पैकेज के आगे, रिपोजिटरी भी, सर्विस भी, सारे पैकेजेस। तो ये बेस पैकेज बन गया, इसको आगे एक्सटेंड करना है, बाकी ये छोड़ दो, डिस्क्रिप्शन टाइम पास है, कुछ भी लिख दो उधर, या छोड़ दो, इग्नोर इग्नोर करो उसको, ठीक है। जार आ गया, 17 आ गया, ठीक है। डिपेंडेंसी तो यहाँ पर ऑप्शन देता है, डे 1 में डिपेंडेंसी आपको ऐड करनी है तो सिर्फ वेब ऐड कर लो, ठीक है, ये काम की है। अगर आपको डेटाबेस से करना है डे 1 को ही, तो डेटाबेस की डिपेंडेंसी ऐड कर लो, डेव टूल्स ऐड कर लो। व्हाट डज डेव टूल्स डू, आपको बार बार एप्लीकेशन शट डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ती ना, उसी को आप रन कर सकते हो। तो मैं सिर्फ फिलहाल तुम लोग के लिए स्प्रिंग वेब और ये ऐड कर रहा हूँ। जैसे जैसे हम लोग इंटरेक्ट करेंगे डेटाबेस से, हम लोग डिपेंडेंसी ऐड करते हैं, माई एसक्यूएल की डिपेंडेंसी लगेगी, जीपीए की डिपेंडेंसी लगेगी, किसकी, जेपीए। यहाँ से मैं बता रहा हूँ, जेपीए दिख रहा है, ये ले लो, और फिर माई एसक्यूएल की ले लो। तो जो लेटेस्ट वाले हैं उनको लेटेस्ट वाला माई एसक्यूएल मिल जाएगा, बट मेरा माई एसक्यूएल है 5.1.15, सो मैं अपना स्पेसिफिक वर्जन लूँगा, पर आप लोग ऐसे ले सकते हो, जेपीए ले लो, माई एसक्यूएल ले लो, डेव टूल ले लो, लॉम्बॉक ले लो, जो भी आपने को यूज़ करना है। लॉम्बॉक बताऊँगा, तो I'll show you all these dependencies, okay? So you can take from here also, and later on also we can add. So as I'm doing a basic project, I'm just adding which dependencies, web and dev tools, okay, and then you can generate, it will download a project for you, डाउनलोड हुआ प्रोजेक्ट, दिख रहा है। अब देखो, इसको पहले एक्सट्रैक्ट कर लो, राइट क्लिक करो और क्या करो, वेंदार से आके क्या करो, एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट कर लिए। अब मैं क्या करता हूँ उसको, ताकि हम लोग सब यूनिफॉर्मिटी पे रहे, ताकि हमारे सबका काम सेम चलता रहे, सबके जेडीके 1.8 है, ठीक है। So to maintain uniformity, what I do is before adding it to my Eclipse, इसको खोला मैंने Eclipse, अब तक नहीं खोला ना, Eclipse में पहले इसको ओपन करो, इसका फॉर्म को ओपन करो अलग से, राइट क्लिक करो, ओपन विथ नोटपैड प्लस प्लस, ठीक है। इसका वर्जन चेंज करो, हम लोग सब एक यूनिवर्सल वर्जन पे काम करेंगे, 2.7.13 लेट्स से एज ऑफ नाउ। फिर हम लोग ग्रेजुअली चेंज कर देंगे वर्जन को। कौन सा वर्जन हम लोग सबका रहेगा, 2.7.13, और सबका जेडीके वर्जन का रहेगा 1.8, ये कर लेना, ओके। सेव कर दिया उसको, क्लोज कर दिया, ठीक है। अब इसको कॉपी करो और डाल दो आपके एक्लिप्स वर्क स्पेस में, कॉपी करो इस फोल्डर को, जहाँ आपका एक्लिप्स वर्क स्पेस आपको मालूम है, मेरा इधर है एक्लिप्स जावा प्रोग्राम, और वहाँ इसको डाल दो, पेस्ट कर दो, पेस्ट हो गया। और अभी इसको इंपोर्ट कर लो, यहाँ जाके फाइल में जाओ, ओपन प्रोजेक्ट फ्रॉम फाइल सिस्टम्स करो, डायरेक्टरी सर्च करो, जहाँ आपकी डायरेक्टरी होगी, मेरा ये वर्क स्पेस है, क्या नाम था भाई, फर्स्ट स्प्रिंग बूट, ये है। इसको सिलेक्ट करो और इसको सिलेक्ट फोल्डर करो और फिनिश कर दो। तो वो सारे जार्स डाउनलोड कर रहा है बैठ के अभी। तो लेट दिस फोल्डर कंप्लीट फर्स्ट, एंड देन यू कैन
देखो मेरे एग्जिस्टिंग, दिस इज माय, कोई भी मेरा एप्लीकेशन है मैंने ओपन किया है, एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज फाइल, क्या ओपन किया मैंने, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल, वो पूरा का एज इट इज कॉपी करो। इसमें बहुत सारा चीज़ें कॉन्फ़िगर का कॉपी पेस्ट है, तो आपको एक ही बार वो सीखना है, फिर आप बार बार यूज़ कर सकते हो, खुद से लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो, द प्रोग्रामर हैज़ कंप्लीटेड, नाउ सर्च वेर आर वी, ITV फर्स्ट, राइट दिस वन, इसको एक्सपांड करो, तो ये आपका प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है। इसमें आपकी फॉर्म XML है, जब भी कोई डिपेंडेंसी ऐड करनी है इसमें ऐड करो। ये आपका रिसोर्सेज में जाओ, टेम्पलेट्स नीचे दिख रहा है, प्रॉपर्टीज उस पर जाओ और सेकेंड लाइन से पेस्ट कर दो, क्या कर दो, और ये लाइन नंबर 1 और ठीक है ना, फिर से आया कि देखो 2 बार आ गया ना, प्रॉपर एप्लीकेशन नेम 1 और 2 सेम लग रहे हैं ना, तो अपन ये निकाल देंगे, आपका यूज़ कर लेंगे, बाकी सब चीज़ें वैसे रखो। अब आप लोग यूज़ कर रहे हो 8.0.33 ना, MySQL वर्जन, तो आप लोग का ड्राइवर क्या होगा, वो चेक कर लेना, ठीक है। तो गो टू JDBC एंड चेक इट, आपका यूज़र नेम क्या है वो चेक कर लेना, पासवर्ड क्या है वो चेक कर लेना। हम डेटाबेस बनाएंगे एक, हम एक डेटाबेस बनाएंगे ITPDB, क्या किया मैंने, ITP बैच 1 का स्प्रिंग बूट डेटाबेस, ये डेटाबेस पहले बना लो। मैं कॉपी करता हूँ और मैं डेटाबेस में गया और डेटाबेस क्रिएट कर दिया। ये मेरे पास UI आता है क्रिएट करने का, तो डेटाबेस बन गया। अभी इसमें टेबल्स कुछ है क्या, टेबल 0 है इसके अंदर, यहाँ दिखाएगा। आगे कितने टेबल्स है, कितने टेबल्स है अभी इसमें दिख रहा है 0, पर कॉन्फ़िगरेशन करके रख लो। सो डेटाबेस का नाम दे दिया, यू ऑल नो व्हाट इज दिस, राइट। क्या ये डिटेल ऑटो अपडेट क्या है, डिटेल क्रिएट, और अब व्हाट इज क्रिएट, रन पे क्या करेगा, ओके ठीक है। आपको SQL की देखना है, SQL क्वेरीज देखना है, डैश कंसोल पे लगा दो ये। फिर आपके टेम्पलेट्स का रहेंगे, ये व्यूज़ का रहेंगे, आपको किस किस एक्सटेंशन से, और ये क्या है, ठीक है। फिलहाल इतना रखो, बाकी जो कमेंट किया है उसको इग्नोर करो, जो कमेंट किया है उसको एज ऑफ नाउ क्या कर दो, इग्नोर कर दो, ठीक है। IT कुछ भी, इसको इग्नोर कर दो फिलहाल, ठीक है। ये आपका क्या बन गया, प्रॉपर्टीज फाइल, ऑल गुड। नाउ व्हेन यू एक्सपांड योर मेन जावा फोल्डर, यू विल सी वन पैकेज दिख रहा है, नाम क्या है पैकेज का, वही नाम है जो आपने दिया था उधर, उसके अंदर आपकी मेन क्लास होंगी, दिख रही है, ये ऐप दिख रही है, एप्लीकेशन क्लास दिख रही है ना, मेन है। उसको किससे अलाउट करते हैं हम लोग, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन से। तो मेन क्लास किससे अलाउट होती है, तो हर क्लास को अलाउट होता है ना, तो हम मेन क्लास का देख रहे थे क्या नोटेशन क्या था। तो मेन क्लास को क्या अलाउट होता है, @ स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, ये रेडीमेड बनी बनाई क्लास है, तो उसका एनोटेशन भी बना है, कौन सा, @ क्लास के ऊपर, ठीक है, नॉट ओवर द मेथड, मेथड के ऊपर नहीं, किसके ऊपर, क्लास। ये आप लोगों को देखने की जरूरत नहीं, ओके। अब क्या करना है मुझे, पहले मेरे प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर बनाना है, तो कितने पैकेज बनाने हैं, कंट्रोलर, सर्विस, रिपोजिटरी और एंटिटी। तो कहाँ बनाऊँ मैं, जो मेरा बेस पैकेज आया है उसी के एक्सटेंशन से बनाऊँ, बेस पैकेज आया है उसी का एक्सटेंशन से। सो ये मेरा बेस पैकेज है ना, राइट क्लिक करो उस पर, न्यू और पैकेज, और बेस पैकेज के आगे ही डॉट लगा के क्या करो, एंड पैकेज नेम ऑलवेज स्मॉल, सो कंट्रोलर, आगे कंट्रोलर पैकेज, वापस राइट क्लिक करो, न्यू कैट पैकेज,
और इंटरफेस। न्यू पैकेज क्या डॉट सर्विस ऑल स्मॉल, राइट क्लिक करो, न्यू पैकेज कौन सा डॉट रिपोजिटरी, वो तो क्लास होंगी ना, पैकेज तो बनाते पहले। न्यू पैकेज डॉट एंटिटी, हो गए, हो गया। देखो देखो मैं क्या किया, मैंने रिपोजिटरी को आगे एंटिटी लगा दिया। तो बी स्मार्ट इनफ, ओके, बी स्मार्ट इनफ। सारे जो बेस पैकेजेस है वो किसको लगेंगे, मेन पैकेज को, कंट्रोलर के आगे नहीं। डॉट एंटिटी दिख रहा है, ये पार्ट देखो सब सेम है, सेम है, यहाँ तक पूरा सेम है, ये पूरा स्क्वायर रिपोजिटरी नहीं होना क्या, राइट क्लिक, न्यू पैकेज डॉट रिपोजिटरी। तो देखो कंट्रोलर एंटिटी रिपोजिटरी सर्विस सबका बेस पैकेज सेम है, ओके। नाउ गो टू द कंट्रोलर, राइट क्लिक एंड मेक, ओके फर्स्ट प्लेस में गए एंटिटी, तो एंटिटी में गए, न्यू क्लास बनाया, क्या नाम से, ठीक है। अब स्टूडेंट से क्या क्या एट्रीब्यूट सेव करने बोलो, प्राइवेट इंटीजर रोल नंबर, नेक्स्ट प्राइवेट स्ट्रिंग, लेट्स से फर्स्ट नेम, स्ट्रिंग लास्ट नेम, ओके, प्राइवेट इंटीजर एज भी देता हूँ मैं, ठीक है, और प्राइवेट डबल परसेंटेज भी लेता, परसेंटेज, और प्राइवेट स्ट्रिंग जेंडर भी लेता, और प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल भी लेता, ठीक है। पूरा ही डाल दिया तुमने, ताकि आगे कुछ करना हो तो इस पर कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, ठीक है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, परसेंटेज, जेंडर, ईमेल, ओके। जो जो एंटिटी क्लास है वो क्या बनती है, ऐड, और जो उसमें अब ये जो एंटिटी है ना, ये सब जीपीए का है, किसका, ये सब जब डेटाबेस में सेव करेंगे तब होगा ये सब। तो फिलहाल मैंने सिर्फ बना दिया सिंपल के लिए, तो अभी एंटिटी नहीं लगा सकते हम लोग, क्योंकि हमने जीपीए का ऐड किया है, नहीं ऐड किया है ना, तो उसको छोड़ दो। और अब इसमें नॉर्मल अपना जो सोर्स जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स बना लो, तो पेरेंट क्लास फिलहाल है नहीं तो उसको निकाल दो। ऑल आर्क कंस्ट्रक्टर बनाया है तो नो आर्क्स भी बनाओ, डेटा प्राइवेट रखा है तो गेटर सेटर्स भी बनाओ, और टू स्ट्रिंग भी बना लो, ओके। कौन सी क्लास बन गई हमारी, अभी डेटा में जाएगी कि नहीं जाएगी, विल द टेबल मेड इन डेटाबेस बाय दिस नेम, यस नो मे बी, नो, वाई, बिकॉज इसको मैंने ऐड एंटिटी या नॉट नहीं किया है। जब हम करते हैं ऐड एंटिटी तब वो क्लास क्या बन जाती है डेटाबेस में, टेबल, और उसके लगता है आपको प्राइमरी की, क्या लगता है उसके लिए हमको प्राइमरी की लगता है, तो अब तक मैंने कुछ किया नहीं। तो एंटिटी ये क्लास बन गई, तो आगे 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 करेंगे एंटिटी। सो जो एंटिटी में क्लास है उस क्लास के नाम से कंट्रोलर में जाके क्या बनाओ, क्लास स्टूडेंट कंट्रोलर, रिपोजिटरी में क्या बनाओ जाके, न्यू इंटरफेस, ठीक, कौन सा, स्टूडेंट रिपोजिटरी बन गया। एक्सटेंड करेगा जीपी रिपोजिटरी पर, तो हमने जीपी ऐड नहीं किया तो फिलहाल छोड़ दो।
सर्विस पे क्या ऐड करो, क्लास कौन सी, स्टूडेंट सर्विस, ठीक है। नॉट द कंट्रोलर विद, नाउ आई विल यूज रेस्ट कंट्रोलर फर्स्ट, व्हाट विल आई यूज, रेस्ट कंट्रोलर। आगे अब कोई भी एंड पॉइंट हिट करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो मैं बनाता हूँ पहले एक एंड पॉइंट, तो एट द रेट मैपिंग, और बोलता हूँ वेलकम एंड पॉइंट, कौन सा एंड पॉइंट, तो एक फंक्शन बनाएंगे पब्लिक स्ट्रिंग, नहीं तो हम लोग कुछ फिल्टर स्ट्रिंग नो, वेलकम टू आईटीपी बोल देंगे ना, कैरेक्टर करूँगा, गेट मेथड कैन वी कैन डू दिस ऑन बोथ, ठीक है। यस, अभी हम पोस्टमैन के थ्रू करेंगे, पहले शुरू के किस पे करेंगे हम लोग, पोस्टमैन पे करेंगे। अब देखो मेरे कंट्रोल में एक एंड पॉइंट है क्या नाम का, तो है ना हिट स्लैश वेलकम, सो आई विल ट्राई लोकल होस्ट कोलन, व्हाट इज द पोर्ट नंबर वी हैव गिवन, what is the port number you have given, you can use any port number, okay, you will want to use 808585 उसका पोर्ट नंबर क्या है हमारा। तो हम लोग को जब हम रन करेंगे एप्लीकेशन को, हमको जाना है ब्राउजर के ऊपर और क्या हिट करना है, लोकल होस्ट कोलन स्लैश द कंट्रोलर एंड पॉइंट, तो क्या आंसर आएगा, आना चाहिए आईडी, ठीक है। चेक, तो मिनिमाइज ऑल द, सब तो सही है जगह पे अपने, इसको एक्सपांड करो, ऐप मेन को हमेशा मेन से रन करो, रन एज जावा, देखते हैं मेन क्या करता है। प्रीवियस सारे रन, पहले रन को बंद कर देना तो ये कॉन्फ्लिक्ट ना हो किसी पोर्ट से, अब फिर अलग से रन करना और रन एज जावा एप्लीकेशन, ओके, डोंट रन ऑन सर्वर एंड वेट फॉर द मैसेज विच सेज स्टार्टेड इन दीज मैनी सेकेंड्स। आ गया स्टार्टअप इन 5, फिर अभी आपके ऊपर है, जब हमसे उसे गेट कर रहे हैं कुछ, तो हम लोग उसको यहाँ भी टेस्ट कर सकते हैं ब्राउज़र के ऊपर, तो क्या है फॉर 88 स्लैश क्या स्लैश वेलकम आया। अब इसको वहाँ कैसे करना है, पोस्टमैन पे रन, ये सारे मेरे प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं, कलेक्शंस पे जाओ, दिख रहा है कलेक्शन, दिख रहा है, उस पर क्लिक करो और बोलो ब्लैंक कलेक्शन, बन गया न्यू कनेक्शन, उस पर उसका नाम चेंज कर दो और क्या दे दो, ITP बैच 1, ठीक है, तुम लोग का है वो, तो ITP बैच 1 बन गया। उसके लाइन में जाओ, 3 डॉट दिख रहे हैं, उस पर क्लिक करो और करो ऐड रिक्वेस्ट, हम लोग सिर्फ फेच कर रहे हैं तो गेट रिक्वेस्ट ले लो, ओके। और क्या था, लोकल होस्ट 88, जो अपने यहाँ लिखा है वो कॉपी पेस्ट कर दो, जो यहाँ लिखा है ना वही यहाँ कॉपी पेस्ट कर दो पूरा, ओके। उसका नाम कौन सा एंड पॉइंट है, ये वेलकम एंड पॉइंट है, यहाँ ताकि यहाँ दिख जाए अपने को नाम में, सेव किया, देखो वेलकम बन गया इधर, और इसको सेंड करता हूँ मैं, तो मेरा रिस्पॉन्स यहीं आ जाता है, दिख रहा है, यहाँ मेरा रिस्पॉन्स आ गया, मेरा बैकएंड डेवलपर का काम खत्म हो गया, मैं लॉग आउट करके बोल सकता हूँ बाय बाय। अब ये URL फ्रंट एंड को दे देना, भाई आपको वेलकम दिखाना है ना, ये URL पर हिट करो, आपको वेलकम मिल जाएगा, फ्रंट एंड टीम इसको हिट करेगी जावास्क्रिप्ट के थ्रू, रिस्पॉन्स आएगा और रिस्पॉन्स को लेंगे H1 में डालेंगे, कहाँ पे डालेंगे, समझ में आ रहा है, बैकएंड डेवलपर का काम, पोस्टमैन पे रिस्पॉन्स आ रहा है एज पर एक्सपेक्टेशन, बैकएंड डेवलपर जॉब इज डन, okay. Now I wanted to return an object, I wanted to return a object, so okay, so I go to the controller, I go over here, I copy this format and I say get student, क्या किया मैंने, get student, तो जो
एंड पॉइंट का नाम वही फंक्शन का नाम, राइट। और क्या करेंगे हम लोग फिर अभी स्टूडेंट बना लेंगे। स्टूडेंट S1 इज न्यू, कंट्रोल शिफ्ट तो अलग पैकेज में ना इंपोर्ट कर लो उसको। अब S1 डॉट सेट एज 21, S1 डॉट सेट ईमेल alice@gmail.com, S1 dot set first name Alice, S1 dot set gender, S1 dot set last name, dot set percentage, set roll number, okay, and then return S1 किस टाइप का है अभी, किस टाइप का है, so I'll change this. As I use DevTools, I will save and it will rerun the application behind अपने आप। DevTools का एडवांटेज क्या मिलता है, सेव पे क्या कर रहा है वो, देखो 10-16 हो रहा है ना अभी, 10 रन कर दिया था, ठीक है। अब मुझे हिट करना है कौन सा एंड पॉइंट, तो यहाँ आता हूँ मेरे इसमें बैच के बाद में 3 डॉट है, क्लिक किया, ऐड रिक्वेस्ट किया, नया रिक्वेस्ट ऐड कर देगा, यहाँ क्लिक करो, प्रीवियस डेटा मिल जाएगा आपको। और क्या है, यहाँ पर दिख रहा है न्यू रिक्वेस्ट, तो ये एंड पॉइंट कॉपी कर लो, यहीं लिख दो ऊपर, और यहाँ यू कैन गिव स्पेस आल्सो, सेव एज यू सेव, यहाँ पर चेंजेस कर देगा, दिख रहा है। एंड नाउ एज आई डू अ सेंड, आई विल गेट दैट स्टूडेंट आ गया। सो बैकएंड डेवलपर क्या करता है, अपने एपीआई को टेस्ट पोस्टमैन पे करता है, पोस्टमैन पे रिस्पॉन्स आ गया, होता है माइग्रेशन ऑफिसर, तो ये बोलते हैं लोकल एनवायरनमेंट। कौन से एनवायरनमेंट पे काम कर रहा है, मेरे लैपटॉप पे आउटपुट आ रहा है। अब यही कोड जब मैं आईटीपी का सर्वर यूज करता हूँ, आईटीपी का डेटाबेस यूज करता हूँ, तो मे बी सम नेटवर्क इशू एंड आई माइट नॉट गेट द डिजायर्ड आउटपुट, तो वो मेरे अभी डेव एनवायरनमेंट पे नहीं आ रहा है, इस पे नहीं आ रहा है, डेव एनवायरनमेंट अलग होता है, और जब लाइव होता है तो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। कौन सा, प्रोडक्शन पे लाइव होता है, वो जो हम व्हाट्सएप हम यूज कर रहे हैं वो हम प्रॉड का व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, कौन सा, और जो लोग नया कुछ बना रहे हैं व्हाट्सएप वाले, तो जो डेवलपर लैपटॉप पे कोड कर रहा है वो उसके लोकल पे कोड करके चेक कर रहा है, जब उसके लोकल पे रन हो गया फिर वो चेक करेगा डेव में, यानी डेवलपर्स टेस्ट करते हैं, वहाँ भी चल गया, फिर वो देगा टेस्टिंग टीम को, तो वो टेस्ट करेगी उनसे टेस्ट एनवायरनमेंट में, वहाँ भी सब कुछ सही है, फिर डाल देंगे किस पे, प्रॉड। यहाँ आउटपुट किस पे आ गया, लोकल का आउटपुट आ गया, तो योर लॉजिक इज रनिंग परफेक्टली फाइन, ठीक है। अब मुझे लिस्ट ऑफ चाहिए, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, ये एक स्टूडेंट आया ना, आई वांट लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, तो आई विल से गेट स्टूडेंट लिस्ट, जो एंड पॉइंट है वही फंक्शन है। अब कितने बनाए स्टूडेंट मैंने, क्या बोल रहा है, ओ ठीक है। अब कितने स्टूडेंट हो गए, ये S1 हो गया, ये S2 हो गया, इसको चेंज करो, S, हाँ ये वो भी चेंज हो जाएगा, S2 लिस्ट ऑफ स्टूडेंट हो जाएगा, S2 S2 ठीक है। तो सब चेंज कर दो, 21 से 42 से बैन कर दो, बैन को बैन कर दो,
फीमेल को मेल कर दो, बेन पीटर कर दो, बेन स्मिथ कर दो, 88.5 कर दो और 102 कर दो। ठीक है, नाउ ये क्या हो गया, S1 और स्टूडेंट S2 का मानो क्या है, S2 हुआ यहाँ पर, ओके 2 हो गए ऑलरेडी, ओके S2 ये हुआ क्या, इसको S3 कर देंगे, ठीक है 23 कर देंगे, इसको क्रिस कर देंगे, क्रिस भी मेल है और क्रिस का नाम कुछ दे देंगे, 98.5 कर देंगे, 103 कर देंगे, ये हो जाएगा S3 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 S3, सही है। नाउ आई विल फॉर्म द लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, array list of which student, call them as is new array list, and what will I do, students में ऐड कर देंगे क्या, हाँ किया ना, ठीक है S1 हो गया, S2 हो गया और S3 हो गया। Now what will I return, रिटर्न क्या, स्टूडेंट्स क्या है, स्टूडेंट क्या है, लिस्ट कहाँ से लाओ, यूटिल्स, लिस्ट कहाँ से लाओ, ठीक है ऑल गुड। As I save, it will rerun the application and I can go to the postman, go to your batch 1 dots, म्यूट कर दे थोड़ी देर के लिए, तो गेट स्टूडेंट क्या हो गया, गेट स्टूडेंट लिस्ट, गेट स्टूडेंट लिस्ट, ओके और सेव कर दो, तो क्या दिख जाएगा आपको, जब हिट कर देंगे आप तो आपको लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स मिल जाएगी, आ गई। तो पोस्टमैन में रिस्पॉन्स आ जाता है, बैकएंड डेवलपर का काम खत्म हो जाता है। फिर ये एंड पॉइंट आपको देना है यूआई टीम को, वो हिट करेंगे, वो लोग लूप लगाएंगे और उसको डिस्प्ले करेंगे टेबल में, तो ऐसा दिखेगा उसको। ओके, सो नाउ you all try to make this.